Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Ambreen Ahmed, your course instructor, and I welcome you to the e-class organized by Government Postgraduate College TG Khan. Till today you have been taking lectures with Madam Hina. Madam Hina will continue with the prose section, and today's onward first 3 days I'll be continuing with the poetry section. So let's start our poetry section, and we will discuss today the very first poem, that is The Rain. But before starting the lecture, I want to advise you people that you should subscribe the channel so that you'll be notified about the upcoming lectures or the lectures which are being uploaded daily. Plus, attendance is very important with your lecture. An attendance form is attached. So what you have to do, you have to fill the form and you have to submit that form. Once you submit that form, your attendance will be marked. I hope you got my point. So let's start our poetry section. Now, before starting the poem itself, let us very briefly discuss that what is poetry and what is the major difference between the poetry and the prose or fiction. Coming to your course is divided into three parts or three sections. One section contains short stories. The second section or the other section contains poems. The third section comprises over plays. Now, you might have an idea of what fiction is, what short stories and novels are. I will be focusing on what poetry is. Simply speaking, poetry is that genre of literature which is written in lines rather than in sentence. बेटा पोइट्री क्या होती है? ये प्रोज से या नसर से शायरी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. अब ये डिफरेंट क्यों होती है? अगरचे इस पे बहुत ही गुंजलक किस्म की बहस या मुबाहिस जो है वो मौजूद है मुबाहिस, लेकिन अगर हम सिंपली देखें तो उसकी जो बुनत है पोइट्री की, जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो जो है वो प्रोज से डिफरेंट होता है. प्रोज जो है वो लाइंस सेंटेंसेस में लिखा जाता है, उसमें जुमला पूरा बनाया जाता है. इसमें पोइट्री का जो जुमला होता है, जुमला पूरा नहीं होता बल्कि इसको लाइंस में लिखा जाता है. इसकी लाइंस होती हैं और प्रोज में आपके पास सेंटेंसेस होते हैं. द अदर थिंग इज़ पोइट्री हैज़ अ डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन. पोइट्री में इमोशनल एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है. इसकी डिक्शन जो, इसका लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो प्रोज से डिफरेंट होता है. इसमें ज़्यादा ध्यान के साथ कोई मेलोडियस किस्म के कोई म्यूज़िकल वर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. अगर दूसरी तरफ इसकी म्यूज़िक ही की बात करें तो इसमें कुछ लवाज़मात भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे राइमिंग स्कीम इसमें यूज़ होती है. राइमिंग स्कीम मतलब हम काफ़ी अल्फाज जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हियर, नियर, इस पोएम में भी. सो दीज आर फ्यू वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोइट्री एंड द प्रोज. So let's start our first poem, that is The Rain. It is composed by W.H. Davies. Now, who is W.H. Davies? W.H. Davies is an English poet who was born in 1871 at Wales and died in 1940. He left school at a young age and lived for a number of years as a peddler and a beggar in USA and England. His first attempt of the poetry, The Soul's Destroyer, was printed at his own expense. It won the attention of G.B. Shaw. G.B. Shaw stands for George Bernard Shaw. Davies was a prolific poet. His favorite themes were nature and the hardships of poor. Now, who is W.H.A.? He is an English poet and he led a very miserable life. Why? Because of the poverty. He was a beggar or he was a peddler, so his life was full of hardships. He wrote his first book of poetry
with the title The Soul's Destroyer, and he got it printed on his own expenses. फिर इसकी जो पोइट्री थी, इट वन द अटेंशन ऑफ जी बी शॉ. हु इज जी बी शॉ? जी बी शॉ वॉज एक्चुअली अ ड्रामेटिस्ट, वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. फिर उन्होंने जब W.H. डेविस की पोइट्री पढ़ी तो वो उनके अटेंशन में आई, उनकी नोटिस में आई, तो वो इनको मंजर आम पर लाने में कामयाब. बेसिक थीम्स जिसकी W.H. डेविस बहुत ज़्यादा जिस पर लिखते हैं वो है नेचर. बाय नेचर आई मीन दैट he mostly write about the natural sceneries and natural beauty. Plus, he also talk about the hardships of the poor, the suffering, the miserable condition which poor people suffer or bear. So let's see, in this very poem also you will find both of these themes. So students, this is page number 51. You should be on the page, and this is poem number 1, The Rain. I am reading the text of it and then I'll be explaining it. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. Now, the first four lines of the first stanza is actually setting a scene of a rain. पहली चार लाइनों में आपको बताया जा रहा है कि ये सीन जो है वो किसका है, एक बारिश जो है वो हो रही. और हमें कैसे पता पड़ा है बारिश हो रही? बिकॉज द राइटर इज़ हियरिंग. राइटर्स को आवाज़ आ रही, पोइट को इस आवाज़ आ रही है कानों, और वो सुन रहा है कि लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन. लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं, वो क्या पी रहे हैं? वो रेन को पी रहे हैं. हेयर इट मीन्स दैट रेन इज़ पोरिंग ऑन द लीव्स. अब चूँकि लीव्स बाकायदा पी नहीं सकते उसको, तो बेसिकली पर्सोनीफाई किया गया है यहाँ पर पत्तों को एक मेटाफर के ज़रिए, या मतलब उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो कोई इंसान हो जो कि कुछ पी रहे हैं, या कोई ज़िंदा चीज़ें जो कि रेन पी रही हैं. आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप. और फिर ये कह रहे हैं कि मुझे इन पत्तों की जो पत्तों पे रेन गिरने की जो आवाज़ आ रही है, उससे मुझे पता चल रहा है कि जैसे रेन इन पर गिर रही है, और उस आवाज़ से मुझे पता चल रहा है रेन हो रही है. और मुझे इस आवाज़ से पता चलता है कि जो ऊपर के दरख्त के ऊपर के जो पत्ते हैं, लीव्स ऑन द टॉप आर रिच. रिच इन व्हाट सेंस? रिच इन सेंस ऑफ गेटिंग वाटर ऑफ द रेन. ऊपर के जो पत्ते हैं वो रिच हैं, अमीर हैं. क्यों? क्योंकि उनको पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है. दे आर फुल्ली वेट एंड दे आर गेटिंग ample supply of water, giving the poor beneath drop after drop. लेकिन उनसे जो नीचे जो पत्ते हैं वो उस रेन को इतनी गश के साथ रिसीव नहीं कर पा रहे. रेन उन पर पूरी तरह नहीं पड़ रही है. क्यों? क्योंकि रेन जो है वो ऊपरी पत्तों पर स्टॉप हो जाती है, और नीचे पानी कैसे आता है? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा पानी, कतरा कतरा पानी नीचे वाले पत्तों पे गिरता है. then that is why the writer is saying that the leaves which are present beneath the top leaf, they are poor. Why they are poor? Because they are getting less share of water. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. Now you can see that the word here, here and near, दे आर राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, ऐसे लफ्ज़ जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम उर्दू में हम काफ़ी अल्फाज भी कहते हैं. जैसे कि यू कैन सी हेयर टॉप एंड ड्रॉप. ओके, सो द सेकेंड लाइन इज राइमिंग विद द फोर्थ लाइन. फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर नॉट राइमिंग, एंड द लास्ट two lines are rhyming. ठीक है, this is the rhyming scheme of this poem. Now what the writer is saying in these two lines is he is praising actually the beauty of nature, and he is saying that this noise of falling water on the leaves is very sweet, very melodious, and very musical to hear. I can feel it, or I can listen it, that water is actually dripping drop by drop, and even in it is falling or pouring down from the sky on the top leaves. And this noise
is making me very much happy. Now, dear students, if you analyze the first stanza कहते हैं बेटा बंद को, पहला बंद जिसमें हमारे पास 6 लाइन है. If you analyze this stanza, you'll come to know that it is operating on 2 level. इसमें जो मीनिंग है बेटा वो 2 लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट इज अपेरेंट मीनिंग एंड द सेकेंड इज सिम्बॉलिक मीनिंग. टू ट्रेस द सिम्बॉलिक मीनिंग यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स. अब देखें, अपेरेंटली तो हमें ये नज़र आ रहा है कि शायर ये कह रहे हैं एक सिंपल सा एक नेचुरल सीनरी है एंड पोइट इज़ वेरी मच अमेज्ड बाय दैट सीनरी एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्ट्स राइटिंग पोइट्री. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, अमेज्ड हो गया उसकी आवाज़ जो वो सुन रहा है उससे, तो इसलिए उसने ये पोइट्री जो है वो लिख दी. लेकिन सिम्बॉलिकली हम इसको देखें तो बेसिकली क्या है, ही इज़ सेइंग द लीव्स ऑन द टॉप आर रिच. Here he is actually referring to the strata of the society, the elite class, the upper strata of society. They gain all the benefits of the benefits within the society, whether these benefits are economical, social, cultural, educational, whatever. जो आपकी सोसाइटी का ऊपरी तबका होता है, आला तबका होता है, अमीर तबका होता है, वही हर चीज़ जो है उसी को मिलती है. जैसे जो ऊपरी पत्ते हैं, जो ऊपर के पत्ते हैं, उन्हें पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है. इसी तरह हमारे यहाँ सोसाइटी में चूँकि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर जो अपर तबका है उसको हर किस्म की प्रिविलेज मिल जाती है और वो क्या करते हैं, दे जस्ट गिव ड्रॉप बाय ड्रॉप विन, और नीचे आते आते तक वो सारी प्रिविलेजेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं. ये सिस्टम बेटा हर जगह ऑपरेट करता है विद इन सोसाइटी. इवन आप हमारी सोसाइटीज़ में देख लें कि अब चलें इसी से अंदाज़ा लगा लें, बजट्स वगैरह बनते हैं, बड़े शहरों को ज़्यादा मिल जाते हैं, छोटे शहरों तक आते आते ख़ास तौर पे हमारे सिटीज़ में या हमारे एरियाज़ में दे आर अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़. वाई? बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी और दे डोंट एंजॉय दैट स्टेटस. हम चूँकि वो स्टेटस एंजॉय नहीं करते, इसलिए हमें जो है वो प्रिविलेजेस नहीं मिल पाते. तो यही राइटर यहाँ पर सिम्बॉलिकली कह रहे हैं कि अपर स्टेटा जो है सोसाइटी का, दे आर रिच एंड दे आर गेटिंग मच बेनिफिट्स आउट ऑफ द सोशल सेटअप, while the poor are actually getting drop by drop. Scarcity is there for the poor people. Now let's see the second stanza. And when the sun comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. Structure, if you see the structure of this stanza, again the word stop and drop, they are rhyming. The second line and the fourth line are rhyming. The first and third are not rhyming, and then the last 2 lines are rhyming. ठीक है जी. सेम वही स्टेंजा का पैटर्न है जो पैटर्न पहले स्टेंजा में फॉलो किया गया है. और अब ये इसमें ये कह रहे हैं राइटर प्लेनली, ही इज़ अपेरेंटली सेइंग दैट आफ्टर द रेन स्टॉप द सन विल कम आउट. अब देखें ना, जब बारिश होती है तो हर चीज़ धुल के साफ़ सुथरी हो जाती है और कुछ अर्से बाद सूरज निकल आता है, और चूँकि धूल मट्टी जो होती है वो हवा में से बैठ जाती है बारिश की वजह से, तो सन जो है वो बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट निकलता है. अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड. और जब सन निकल आएगा, जब सूरज निकल आएगा, तो फिर क्या होगा, उसकी जो वंडरस लाइट है, दैट अमेजिंग लाइट ऑफ सन विल एनरिच एवरी डार्क ड्रॉप. वो जो ड्रॉप्स हैं ना, पानी के कतरे जो दरख्त पे मौजूद हैं या जो हर जगह मौजूद है, वो डार्क हैं, लेकिन जब सूरज निकलेगा तो उसके अंदर से पानी जो है वो, उसके अंदर से रोशनी जो है वो पास होगी और हर डार्क ड्रॉप जो है वो ल्यूमिनस हो जाएगा, चमकने लगेगा. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट. नाउ द राइटर इज सेइंग, और पोएट इज सेइंग दैट I hope, my hope is that the sun will shine very bright and it will be a lovely sight. And when sun will shine, it will be a very lovely sight. Here in this stanza, you need to know one thing is that sun is actually a metaphor of hope, happiness in the English literature. इंग्लिश लिटरेचर में सूरज जो है वो एक खुशी की, एक होप की, उम्मीद की और अच्छे दिनों की या बहार की अलामत है. मतलब ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में ये जो सन का इस्तारा है वो लिया जाता है. दूसरा, अगर हम इसको देखें, अपेरेंटली तो हमें यही नज़र आ रहा है कि राइटर इज़ एक्चुअली होपिंग फॉर अ नेचुरल सीनरी विच वुड प्लीज हिज आई. बट अगेन इसको अगर हम सिंबॉलिक लेवल पे इंटरप्रेट करें तो राइटर इसको लिंक कर रहे हैं अपनी प्रीवियस थॉट से, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपर स्ट्रेटा जो है वो इंजॉय करता है,
पुअर पीपल जो है वो सफ़र करते हैं या उन्हें कम मिलते ही है कोई भी चीज़, तो वो कह रहा है मुझे उम्मीद है, राइटर इज़ बिलीविंग दैट रेन विल स्टॉप समडे, कभी ना कभी इस रेन ने ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें दैट रेन इज़ द सफरिंग एंड मिजरी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में रेन का जो मेटाफर है, बारिश का जो इस्तारा है, वो हमेशा सफरिंग्स के लिए यूज़ होता है। सर्दी, बारिश, ये चीज़ें वो सफरिंग्स के लिए यूज़ करें। तो ही इज सेइंग दैट sufferings will end someday. Someday there would be a social justice. There would be a system which would give justice to everyone, where there would be equality everywhere. And that sight would be very beautiful. Sunshine here means the sunshine of justice, you may say, sunshine of equality, sunshine of a socially balanced culture. तो ये जो सनशाइन है ये क्या करेगी, हर डार्क ड्रॉप को, every that corner where people are suffering or people are not getting what they deserve, that dark spots would be luminous. वो सब जो है वो रोशन हो जाएंगे और बुराइयां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, इनजस्टिस जो है सोसाइटी से ख़त्म हो जाएगा। एंड राइटर इन द एंड इज़ एक्चुअली होपिंग that yes, that day will come and that day will be a very lovely day. So we are done with the text of the poem. I hope you have you've got the main idea or the content of the poem. Let's end our lecture here. Tomorrow we'll be continuing with the exercise, and I will also tell you how to attempt a question of reference to context. There is always a question of reference to context from the poem section. So I'll be telling you the method to attempt that question, and we'll be doing the exercise too. So until then, until tomorrow, take care. Allah Hafiz, and regularly go through all the lectures which are being uploaded. Thank you very much.